Good evening and welcome all of you guys here in today's session at Let's Talk Live. I hope you all are doing well and learning this language out loud. So, as we have joined today's session to enjoy and entertain today's practice session, definitely we will make this session very nice and exciting. We will have like good question also. What I thought today we are going to do some rapid fire, and in rapid fire means I will ask one person, and like I will ask several questions to one person, and then you have to answer, like you have to translate in English. Okay, and so in first round we will do this activity. If we have more time, so definitely we will move to the next activity. So we are going to enjoy today's session. So please stay tuned the end of the session. And so first of all, I would like to call uh, Pooja ma'am. Pooja ma'am, good Yes. evening. Good evening, sir. So are you free to talk? Yes, sir. Okay. So as I asked you that I will ask some Hindi sentences that you have to translate it in English. If you stuck, I will help you, and there is another member available. If I am not, then they will correct you. So means today we will learn something new. Okay. So my first sentence है आप क्या कर रहे हो? What are you doing? Yes. Okay. uh, क्या आपने अपना डिनर कर लिया? Have you finished your dinner? Have you finished your dinner? Finished your dinner. Yes, sir. हम्म. ओके. हैव यू हैड भी बोल सकते हैं, फिनिश भी अच्छा है, ठीक है, राइट. Oh, ओके. हाँ हाँ. आपको ये मालूम होगा कि खाने के लिए हम हैव का भी यूज करते हैं. कुछ भी yes, खाना sir. पीना जो भी होता है उसमें, जैसे वाटर हो गया, खाना पीना, ड्रिंक करना, मतलब जो भी है उसके लिए हैव का यूज करते हैं हम. सो वो भी अच्छा है. ओके देन फाइन. सो नेक्स्ट सेंटेंस है आ, तुम्हें आने में इतना देर क्यों लगा? Why? Why are you late? नो. देर क्यों लगा? Why are you getting late? इसका मतलब होगा आप क्यों लेट हो रहे हो. Okay. आपको आने में इतना देर क्यों लगा? Why did you take more time to reach there? Okay. Why did you take more time to हाँ, reach reach there? there या come there you can say. ठीक है. Oh, And for other member, if I will also make mistake, so you can also correct me. You can interrupt on the same time. Okay, because your attention also required some time if I forget, because I am immediately making from my side, and I'm not a genius, I'm also learning. So if I make mistakes, so please stop me there at the same time, and uh, just correct me as well. Okay. So next sentence है uh, मैं जाने ही वाला था कि उसने मुझे बुला लिया. मैं जाने ही वाला था. कि उसने मुझे बुला लिया. But sir, this type sentence I did not make perfectly. Uh, okay, I try. मैं जाने ही वाला था पर उसने मुझे बुला लिया. He called me, but I I went. No,
जाने ही वाला हूँ, जाने ही वाला था, उसमें हमारे को यूज करना है अबाउट। सो अबाउट। हाँ, अगर जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट, फिर उसके आगे टू, आई एम अबाउट टू गो, मैं खाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट। सो इसमें क्या था, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, बट ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुला लिया, ही कॉल्ड मी। प्लीज मेक अगेन दिस सेंटेंस। ओके। ही ही कॉल मी, आई अबाउट टू गो। नो नो, ही कॉल्ड मी लास्ट में आएगा। ओके, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो, ही ही कॉल्ड कॉल्ड मी। मी। हाँ, बट ही कॉल्ड मी। ओके, ओके। गॉट इट। हाँ। गुड। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने बड़ी मुश्किल से ही एक रोटी खाई होगी। हार्डली आई आई एट वन चपाती। आई हार्डली एट वन ब्रेड या वन चपाती। फाइन, नाइस। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम जितना जल्दी हो सके स्टेशन पर पहुंच जाओ। एज ऑफ नाउ। एज एज ऑफ ऑफ नाउ, नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब क्या होता है? सर आई फॉरगॉट। एज ऑफ नाउ यानी फिलहाल। ओके ओके। बट आई थिंक this type sentence use in this sentence. एज सुन एज। As soon as. Okay, sir. So, what sir? Can you repeat Hindi sentence? हाँ, तुम जितना जल्दी हो सके स्टेशन पर पहुंच जाओ। As soon as possible. Reached station. यू रीच स्टेशन एज सुन एज पॉसिबल। Okay. यू रीच स्टेशन, तुम स्टेशन पर पहुंच जाओ जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। As soon as possible. Okay, sir. ओके, मैंने उसे अपनी शादी में बुलाया था, बट वह नहीं आ सका। Okay. He couldn't come, but I invited him in my marriage. बुलाया था, आई इनवाइटेड हिम, बट ही कुडन अटेंड माई मैरिज पार्टी, या मैरिज। ओके, Okay. नाइस। हाँ, नाइस, यू मेड राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कल सिनेमा गए थे? Did you went cinema tomorrow? Yesterday. Sorry. गए थे यानी Have you? Had you? है, हाँ, यस। Had you? Uh, had you gone cinema yesterday? हैड यू गॉन टू सिनेमा यस्टरडे? Hmm. टू का आपको यूज करना है। यस, नाइस। ओके, वन मोर सेंटेंस फॉर यू, दैट इज, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। The bus. Uh, the bus left मेरे पहुंचने से पहले. When I reached station, but the bus left. द ट्रेन द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। जा चुकी Hmm. थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, Yeah. Okay, sir. इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, आपको कैच करना है कि मैंने मतलब फर्स्ट सेंटेंस में क्या वर्ड्स रखे हैं, सेंटेंस में कौन सा वर्ड रखा है ना। इससे सिमिलर ये क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट एक लास्ट एक सेंटेंस और है आपके लिए।
ओके। क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? Will you give me one glass of water? प्लीज पास मी a glass of water. Just hold on, huh? Just hold on. I am coming. Okay. Yeah, sorry for internet. So, okay. So now, Pooja ma'am, you perform nice, and most of the words you try to make the sentences. It's good. So now I'm calling next member. Kosal sir, are you free? Yes, sir. Okay. So first sentence for you, that is, uh, okay. आप मेरा टेस्ट करो। मैं मैं दिल्ली नहीं गया था। फिर से रिपीट करिए सर एक बार। हाँ, आप मेरा ट्रस्ट करो कि मैं दिल्ली नहीं गया था। You have to trust me that I not go to Delhi. I am not go to Delhi. That is Yes. completely wrong, sir. Please make once again. Uh, गया था। You have to trust me that I have not go to Delhi. I have not go to Delhi. गया था। You believe me. You believe me. उसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा? You believe me that. You believe me that. इसके हाँ बाद सर हाँ दिल्ली नहीं गया था कि हाँ। दिल्ली गया था। I had not gone to Delhi. या फिर अगर था मतलब मैं दिल्ली नहीं गया, अगर ऐसे बोलते दिल्ली नहीं गया, ठीक है। सो आई डिडंट गो टू दिल्ली। डू नॉट, आपने डू नॉट यानी ऊपर सेंट में आ जाएगा, है ना, एज आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो आपका बनाने का सेंस ठीक है, बट ग्रामरली थोड़ा एरर है। ओके, इट्स फाइन। और नेक्स्ट सेंटेंस है, आप यहीं वेट कीजिए जब तक मैं नहीं आऊं। You wait here until I come. हाँ, until I am come, until I am back या until I come. ओके, नाइस। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, ओके, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। I am repairing my mobile phone. आई एम रिपेयरिंग नहीं होगा इसमें, इसमें आपको पॉजिटिव वर्ब यानी गेट का यूज करना पड़ेगा। एंड आई एम गेटिंग माई मोबाइल, और पॉजिटिव वर्ब आते ही V3 आएगा। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, है ना। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। ओके। Okay. You can note down if you have notebook, so you can, I'm not just saying to you, other guys, you can also note down, because many times we use it, and in day to day life also we are using it, but we are not getting where we have to use the causative verb. Causative verbs are different types of verb, okay, like have, get and make. Suppose that next sentence है आपके लिए कि मैं उसे समझा दूंगा, इसका क्या रहेगा? मैं उसे I teach him. समझाना, मैं टीचिंग या नहीं तो पढ़ाना हो गया। समझाना। इसमें भी I पॉजिटिव under वर्ब लगेगा। I understood him. No सर ये भी गलत नो है। नो, इसमें होगा आई मेक हिम अंडरस्टैंड। ओके सर। हाँ, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेक और गेट का जैसे अलग अलग यूज क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था,
जहां पर भी कोई काम किसी थर्ड पर्सन के थ्रू होता है, वो काम आपका हो रहा है बट उस काम के होने की वजह कोई और बन रहा है ना, ठीक है, तो उस जगह आपको पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है। जैसे कि मैंने बोला आप मोबाइल रिपेयर करवा रहे हो, है ना, तो मोबाइल तो आपका रिपेयर हो रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, कोई और थर्ड पर्सन कर रहा है, ठीक है, काम आपका हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको गेट का, लेकिन ये आप रिक्वेस्ट से करवा रहे हो और वही आपको फोर्सफुली करना है, तो मेक का यूज करना है। जैसे कि मैं आपको पिटवा दूंगा, ये एक सेंटेंस है ना, इसमें एक फोर्स आ गया, ठीक है, एक फोर्स yes, करके, है ना, सो उसमें क्या होगा, आई मेक यू बीटन, आई मेक यू बीटन, ओके, yes, इसमें भी पॉजिटिव वर्ब में V3 रहेगा, फिक्स है, ओके। और जैसे मैंने बोला आई मेक यू अंडरस्टैंड, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें है कि मैं आपको समझा दूंगा, यानी एक फोर्स है इसमें, मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा, ठीक है, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो वहां पे, अच्छा। ओके। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है, कितना समय और लगेगा, How many time did you take more? हाउ मैनी नहीं होगा, हाउ लॉन्ग, टाइम के लिए हमेशा, जैसे यू आर नॉट श्योर द टाइम, एग्जैक्ट टाइम, सो यू हैव टू यूज इट हाउ लॉन्ग। Yes, हाँ, हमेशा टाइम के लिए आप बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, या इट विल हाउ लॉन्ग विल इट टेक मोर, आपको कितना समय और लगेगा, यानी और का आ गया यानी मोर, ओके सर। सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, what I do now? व्हाट शुड आई डू नाउ, Do now. हाँ, शुड नहीं बोले थे। व्हाट आई डू नाउ, Yes, sir. अभी मैं क्या करूँ, हाँ ये भी ठीक है, सेंस वही है, कम्युनिकेशन में ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा, बट अगर जैसे चाहिए का जब सेंस आ जाता है तो आप शुड यूज करेंगे तो थोड़ा ऑफिशियली, मतलब एक अच्छा लगेगा बोलने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है आपके लिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं, What are you searching? हाँ, व्हाट आर यू सर्चिंग और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यस बोथ आर राइट, राइट सर, राइट, ओके। चलो एक सेंटेंस और पूछता हूँ, ओके, क्या आपने मुझे बुलाया था, Have you called me? हाँ, हैव यू कॉल मी, ठीक है, और उसमें अगर आप ऐसे बोलते हो, हैड यू आस्क्ड फॉर मी, आस्क फॉर मी यानी मेरे बारे में पूछना, तो दैट इज मतलब क्वेश्चनिंग बन गया, तो वहां पे आस्क रह जाएगा आपका, ठीक है, हैड यू कॉल में भी बोल सकते हैं, हैव यू कॉल में भी कह सकते हैं, ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक यू कुशाल कौशल, यू स्पोक नाइस, you also made good sentences, so I will get back to you shortly. Now I am calling next member, Seema ma'am. Seema ma'am, Good are you there? evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, all of you. Very Very good good. evening. So okay, for you another sentences, Okay. that, हाँ, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, Here, what is the best restaurant in there in here? which is the best, not Which is the best? There are is there uh, is there with the no sir, wrong. which is the best hotel here, Yes, yes. हाँ हाँ, but you tried to make this correct, right, okay। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, May I dance with you?
मे आई हैव ए डांस विथ यू, वेरी नाइस। इसमें हैव का यूज करना है, मे आई हैव ए डांस विथ यू, ओके। May I have okay, sir. हाँ, क्योंकि आप परमिशन ले रहे तो मे का यूज करना है, और उसमें हैव का मतलब खुद के पोजीशन के लिए मतलब बोल सकते हैं आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, अ, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? Have you any work with me? हैव हैव यू एनी वर्क विथ मी, या हैव यू एनी बिजनेस विथ मी, या और क्या यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ, ये वर्क और बिजनेस बोथ यू कैन यूज इट, राइट, ओके। सो नेक्स्ट है, क्वेश्चनिंग में एक सेंटेंस है, क्या तुम नहीं जाओगे? Will you not go? हाँ, विल यू नहीं, वांट यू गो। इसमें क्या है कि Want. वुड का यूज करना है ना, यानी पॉसिबिलिटी, मतलब यानी आप श्योर नहीं, विल का मतलब यानी आप श्योर हो कि वो नहीं जाएगा, लेकिन आप पूछ रहे हैं उससे, यानी वो जाएगा कि नहीं जाएगा, कंडीशन बच गया ना वहां पे। Hmm. पॉसिबिलिटी हो गई ना, जहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है ना, तो वहां पे वुड का यूज करना है आपको, बट बिना सर सोच। इसमें निगेटिव भी तो है, हाँ जी, सॉरी। इसमें निगेटिव भी है, क्या तुम नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो? वुड यू नॉट गो? देखो, विल का मैंने आपको क्या बोला, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसका क्या बनेगा सेंटेंस? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। हाँ, ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली, है ना। यस सर, श्योरिटी है। हाँ, श्योरिटी है ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अगर मैं वही बोलूँ कि यार मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ, कल दिल्ली जा सकता हूँ, अब कल फ्यूचर की बात हो गई ना, तो वहां पे यस क्या, आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो, है ना, टुमारो। यस। संभावना हो गई ना, तो सेम यहाँ पे है। मैंने आपको बोला कि क्या तुम नहीं जाओगे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यानी यू वुड का यूज करना, ठीक है। वांट ओके यू सर। गो, वुड को वुड नॉट को वांट कहते हैं, वुड नॉट को वांट, वांट बोलना आपको यूज में लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। सर विल हाँ, नॉट को वांट बोलते हैं, आई थिंक वुड नॉट को वुडंट। वुडंट कहते हैं क्या वुड नॉट को? लेट यस। मी, विल नॉट को वांट वांट। विल नॉट को वांट बोलते हैं ना। हाँ, देयर इज सम कंफ्यूजन, बिकॉज ये चीज मैंने लास्ट टाइम मैंने देखा था। ओके, आई विल करेक्ट इट, ओके। सो यू कैन यूज इट, सो इस सेंटेंस में क्या रहेगा फिर मैम, सरिता मैम, उसके विल यू अकॉर्डिंग? नॉट? इफ यू आर यूजिंग वुड नॉट वुडंट। हम्म, इसका मतलब तो फिर विल नॉट भी एक्यूरेट होना चाहिए ना वांट के हिसाब से, ओके। हाँ, तो विल नॉट भी होना चाहिए फिर तो, ऐसे वांट जब विल नॉट को बोलते हैं, मैंने आपको बोला ना, वांट वांट अपन यूज कर रहे हैं वांट, है ना, तो ये विल नॉट का यूज होता है, तो विल होना चाहिए यहाँ पे। बट वुड विल का, जैसे मैंने बोला ना, वुड का पॉसिबिलिटी फ्यूचर में, तो वुड का भी यूज कर सकते हैं, बट वुड। यस। हाँ। यस सर। हाँ, आप भी ठीक है मैम, सीमा में आपको मैं रॉन्ग नहीं कह रहा हूँ, आपका ठीक है, ओके। बट जहाँ पॉसिबिलिटी लगता है आपको, वुड का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये डिपेंड करता है मतलब जो सिचुएशन है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना है, जैसे मे माइट का अलग अलग रहता है ना, वैसे ही पॉसिबिलिटी, ओके। आई एम आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। मैं 3 महीने से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा था, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I have been practicing English speaking from 2 months. 3 में, हाँ, ओके। Since फ्रॉम, 2 months. सिंस और फ्रॉम, फॉर फ्रॉम आएगा For इसमें, फॉर हाँ, yes, sir. फॉर 4 2 months. सिंस फॉर,
हाँ, No, not from. For a particular 2 months, huh? For 2 months. F1. नहीं, actually अगर the point of time is there, then you can use since. Otherwise, you have to use for. I have been Yes, practicing for English learning a spoken English for 2 months या for 3 months ऐसे. yes. Yes, sir. For. Okay, so next sentence है uh, okay, मैं राम से 2 साल बड़ा हूँ जबकि वह राम से 1 साल छोटा है. I am elder than Ram, although Shyam बोले ना सर. Shyam is younger than Ram. आपका ठीक है बट ऑल्दो नहीं आएगा. ऑल्दो यानी तो हालांकि हो गया ना. हालांकि मैंने बोला जब जबकि. वियरस. वेरस. Yes, हाँ. yes, आई एम 2 years elder than Ram, whereas he is 1 year younger than Ram. ओके. yes. हाँ ठीक है. ओके. मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि अच्छा इंग्लिश बोल सकूं. I am English practicing because I can speak fluent. बिकॉज नहीं आएगा. बिकॉज का मतलब क्योंकि हो गया ना. सो दैट. और So फर्स्ट that सेंटेंस में भी आपका यह थोड़ा सा एरर है. आई एम इंग्लिश नहीं आएगा. आई एम लर्निंग इंग्लिश so that I can speak good English. Okay. okay, sir. Yeah. Okay. Thank you. I will ask you next time. So now I'm coming to next member, Sarita ma'am. It's your turn, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Hmm. अभी आप क्या कर रहे हो? What are you doing now? Yeah, at this time, what are you doing? हाँ. ओके. फिलहाल मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है. As for now, I have started practicing English एज फॉर speaking. नाउ या एज ऑफ नाउ? As of now, yes, as of now. ओके. As of, ओके. जहां तक मैं सोचता हूँ राम अपने घर पर होना चाहिए. as far as I think, Ram should be at his home. हाँ. ही शुड बी एट हिज होम. ओके. जहां तक मैं सोचता हूँ राम हॉस्पिटल में होगा. As far as I think, Ram would be in the hospital. इन द यहाँ पे एट का यूज क्यों नहीं किया आपने? So you said na hospital में होगा. That's नो means नो. इन एंड एट का मतलब यहाँ पे एक चीज होता है. हाँ yes, अगर वो if he is admitted, so that time we can use in. If he has visited, if he has gone to visit the patient or their friend, then we can use at. हाँ आप सही है. बट इसमें एक चीज होता है कि जिस जगह पे मतलब वो रेगुलर आना जाना रहता है जिस जगह पे, तो वहां पे अपन को क्या यूज करना पड़ता है? आई थिंक एट का In. यूज करते हैं. एट का या इनका? आई एम नॉट आई फॉरगेट. और एक ऐसा होता है जिसमें आप किसी जगह पर विजिट करते हो या किसी मतलब रेगुलर आना जाना नहीं है, जहाँ पे आपका इतना काम नहीं रहता. आप कभी कभार या ऐसे जाते तो वहां पे कुछ अलग रहता है. मतलब एट या इन में से दोनों में से एक रहता है. आई विल कंफर्म यू लेटर. ओके. सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए.
क्या आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे? will Khana, will you have your food with us? वुड और विल या कुड? Sir, if you are offering, then we can use would or will, I think. हाँ, so If would you you are like to? requesting, would you like to have your food with us? हाँ, would you like to have food with us? Yeah, would you like If to you are have dinner? requesting, if you are हाँ हाँ, requesting, then you can use could. वुड का यूज आप किसी की रिक्वेस्ट पूछने के लिए, है ना? और Offer, yes, offering. कुड Yes. का भी यूज कर सकते हैं, बट कुड का भी अच्छा है। आप जैसे जो वर्ड्स आपको आए वैसे Polite बोल सकते हैं। request. Sir, could हाँ be used for polite and would. Okay. हाँ, ओके ओके। सो क्या आप मुझे ये बुक देंगे? Could you please lend me this book? कुड यू प्लीज पास मी दैट बुक? या Okay. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम या तो उससे माफी मांगो या फिर उसे जुर्माना दो। Either you apologize him you 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 fine for that. You pay और fine. पे हाँ, पे द फाइन या पे फाइन फॉर दैट। राइट, एब्सोल्युटली राइट मैडम, बहुत ही शानदार। ओके, सॉरी, हाँ मुझे थोड़ा कोल्ड कफ हो गया है। मैं Yes. इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। I am so tired, so I couldn't go to my class for studying. कुडंट यानी जा सकता, मैं बोला जा सकता। I can't go for studying. हाँ, ऐसा होगा, आई एम सो टायर्ड या आई एम टू टायर्ड दैट attend, sorry, I am too tired to attend the class. Yes, this is also right. I'm Hmm. too tired to attend the class. I'm so tired that I can't attend the class. I Yeah. can't attend the class. Yes, right. Mhm. Okay, next sentence है हमारे स्कूल में कल से छुट्टियां हो जाएगी। From tomorrow onwards, we'll get holidays. We'll get holidays in our school from tomorrow onwards. वेकेशन और यू कैन Vacation. वेकेशन Okay. और स्कूल विल बी क्लोज फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो या फिर Onwards. हाँ, आपका ठीक है मैम, उसमें कोई वो गलत नहीं है, आपका भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है स्कूल जाने का समय हो गया है। Hmm. Hmm. हम्म, It's time to go to school. इट्स टाइम फॉर स्कूल, यहाँ राइट, इट इज टाइम फॉर स्कूल। ओके, so thank you ma'am, you have also given good answer for each sentences. Okay, now I am calling to the, okay, you will listen only, but I will ask you in the last, no issue. Prisa ma'am, are you there? No, she is unable to speak today. She will listen only. And you sir? Yeah, I'm here.
Okay, then I will call you Yeah. in place of that. Okay. uh, उसे पता होने के बावजूद भी कि आगे खतरा है वह चला गया. ओके, उसे पता होने के बावजूद भी कि खतरा है, वह वहां चला गया. हाँ, वह चला गया, वहां चला गया. ओके, गॉट इट. ओके, ओके, उसे पता होने के बावजूद भी कि वहाँ खतरा है, वह वहां चला गया. He went there that he had inform no no mm, he went there studying. Actually, I'm getting confused. उसको पता होने के No बावजूद issue, no भी issue. वह वहां चला गया क्योंकि वहां खतरा था. हिंदी में सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूज है. Acknowledgement. नहीं, Having said that, एक्नॉलेजमेंट. having said ओके, that, okay, having said that, he went there that there is danger. There is danger. नहीं नहीं. Having said that, he Having went said there. Saritya that, ma'am, you there is mute a yourself. danger. What? Please mute, ma'am. It is not your turn. I will call you Okay, when okay. I will start. Please Make carry. once again, Please carry. Sumit sir. Please Yeah, make once again. having said that, there was danger, but still he went there. Still he went there. Okay, nice. Next sentence है आपके लिए. Hmm, तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है. Don't think so about him that he work hard. Don't think so. ये तो हो गया कि तुम ज्यादा मत सोचो. हाँ, तो ज्यादा मत सोचो राजा, तुम चिंता मत करो. मैंने चिंता Okay, मत करो और ज्यादा नहीं सोचो, okay, तो दोनों okay. डिफरेंट So है सर. don't worry. Okay, don't worry. So about him, he's what was the next sentence? वह बहुत मेहनत करता है. वह बहुत मेहनत करता है. He work hard. Don't. He works hard. He works He hard. works hard. Okay. ओके, नाइस. सो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप इस किताब को अपने पास रखोगे कुछ देर के लिए? Okay. Will you keep this book for a while? कैन यू होल्ड दिस बुक फॉर अ वाइल? Okay. कीप यानी भी रखना, ठीक है, आप बोल सकते हैं, बट एक होल्ड एक अच्छा वर्ड है. वी Right. कैन यूज इट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें यूज करना चाहिए. कैन यू होल्ड Right. दिस बुक? ओके सर. ऐसा नहीं कि आपका सही नहीं है, आपका सही है, बट वी कैन यूज दिस एडवांस वर्ड. Got it. हाँ, ओके. सो नेक्स्ट है, कोई ओके. तुम एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे जब तक तुम अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे. Until ना okay. तुम एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे जब तक तुम अच्छा मेहनत नहीं करोगे. राइट. हाँ. Okay. Okay. You will not pass in the exam until work hard. या फिर क्या था? Until work Until hard. unless you study hard. Okay. Until study hard. Okay. हाँ, until unless को भी यूज कर सकते हैं बोथ. यू कैन यूज बोथ आल्सो. ओके. ओके. सो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इस मामले पर सोचूंगा. I will think on this matter. आई विल थिंक ओवर दिस मैटर. Okay. Over this. मामले पर, इस मामले पर सोचूंगा. ओके. आप सामने रखी कुर्सी पर बैठ सकते हैं. You can sit on the chair. सामने रखी हुई चेयर पर आप बैठ सकते हैं. Okay. Okay. You can sit on the chair which is in front of you. हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन सिट ओवर द एयर
you can sit over there on seat या on chair, है ना? Over there मतलब वहां पर. ओके. Okay. मैं आज से ही इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ. Onwards, I'm going to start English practice. करता हूँ. मैं आज से ही इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ. Today onwards, I'm going to practice in English. इसका हो गया मतलब ठीक है, लेकिन बोल जब आप ग्रामेटिकली देखोगे तो मैं आज से इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू. और मैंने बोला मैं करता हूँ. Okay, so today आई onwards, स्टार्ट. हाँ today onwards I start English practice. हाँ, आई स्टार्ट इंग्लिश प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. ओके, वेरी नाइस. ओके, आप साल में कितनी बार गांव जाते हैं? How many times do you go to a village in a year? हाउ How many ऑफन. times you go? हाउ ऑफन. Okay. कितनी बार. हाउ मेनी टाइम्स ठीक है, बट अगर एडवांस जाना है थोड़ा, हाउ ऑफन. Okay, how often go to your hometown in a year? हाँ, यू गो टू योर होम टाउन. हाउ मेनी टाइम्स भी बहुत अच्छा है, एंड हाउ ऑफन भी यू कैन यूज इट. Often it is latest means we should use while speaking. ओके. यहाँ तक कि मैंने उसे पैसे भी दिए, फिर भी उसका पर्स खाली है. यहाँ तक कि का क्या होता है? इवन. Even. Okay. Repeat Hindi sentence once more. यहाँ तक कि मैंने उसे पैसे दिए, फिर भी उसका पर्स खाली है. Even I gave him money, but still his purse is blank. ब्लैंक. ब्लैंक नहीं होगा सर. एम्पटी. एम्पटी यू कैन Empathy. यूज. Oh, एम्पटी. empathy. हाँ. Right. This is right. ओके. Sarita ma'am, if there is any error, so you can correct us. I am not stopped you Empathy is for okay. correct. हाँ. Empathy Yes. is okay. Okay. Next है. Hmm, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बट वह नहीं समझा. I tried to make him understand, but still he didn't understand. या हाँ, फिर he बट ही didn't. couldn't यूज करोगे तो भी पूरा हो जाएगा. आई हाँ ठीक है. राइट. I made him to understand, but he couldn't. I tried to make him understand, but he couldn't. Okay. Sorry. So 1-2 more sentence. रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? So how far railway station is there from here? How far is the railway station from here? Very nice. Okay. Next sentence है. तुम इतना जल्दी क्यों वापस आ गए? तुम इतना जल्दी वापस क्यों आ गए? Why did you come back this much early? या फिर Come back so soon. Come back so soon या early. Why did you come back so early? है ना? So early भी यूज करते हैं, so soon भी यूज कर सकते हैं. both are right. Okay. हम रास्ता भूल गए. I forgot path. Forget नहीं होगा सर. Forget. मिस ये होगा क्या? Lost. Lost. हाँ, मिस. Forget का मतलब जो चीजें ध्यान में होने वाली चीजें होती है वो चीज को बोला जाता है. जैसे याद होने वाली कोई चीज. Right. We have lost our way. That is perfect one. Nice. Okay. So next sentence है. सड़क मरम्मत के लिए बंद है.
सड़क मरम्मत के लिए बंद है। हाँ देखिए, सड़क मरम्मत के लिए बंद है, राइट? हाँ ओके, हिंदी में ही हमको कंफ्यूजन है। सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सड़क का मरम्मत का काम चला, ओके। हाँ मरम्मत के लिए बंद है, ओके। द रोड कंस्ट्रक्शन इज स्टॉप्ड। रोड इज क्लोज्ड, फिर आगे क्यों? अच्छा, मतलब सड़क बंद किया गया है, आगे काम चल रहा है, ये सेंस है। हाँ, ओके ओके, रोड इज क्लोज्ड, इज के गॉट साथ इट में क्लोज्ड आया, ये क्या चीज है, समझ गए सर? गॉट इट। इसमें इस भी कभी कभी इज एम आर का के साथ भी वर्ब फ्री लगते हैं, वर्ब का हाँ थर्ड। हाँ। यस, रोड इज क्लोज, क्यों? क्योंकि किसने किया है पता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट का पता नहीं है ना। रोड क्लोज है लेकिन ये पता नहीं किसने किए है ना। सो right. पैसिव में है, ये मैडम सही बोल रहे हैं कि ये पैसिव में है, तो पैसिव में ऐसा हमेशा ये ऐसे, हाँ द रोड इज क्लोज। हैव में भी आता है वही वर्ब फ्री जैसे कि पैसिव। हमारा जैसे इवेंट रहता है तो हम डालते हैं मेल पे सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड विल बी प्रोवाइडेड यानी किया जाएगा। ठीक है, कौन देगा ये पता नहीं लेकिन दिया जाएगा ऐसे। ओके, सो वन लास्ट सेंटेंस है, वो है, सो अब गाड़ी चलने में आधा घंटा बाकी है। गाड़ी चलने में आधा घंटा बाकी है, ओके। 30 minutes left to start the train या फिर start the car। only 30 minutes left to start the car इसका या फिर start 30 the मिनट्स train। नहीं बोलेगा, हाफ एन आवर। ओके 30 मिनट्स यानी वो मिनट में आ जाएगा, फिर अपन को यहाँ पे घंटा मतलब वैसे दिखाना ना आधा घंटा। सो देयर इज स्टिल हाफ एन आवर फॉर ट्रेन टू स्टार्ट। please ओके, repeat once more। there is still half an hour, there is still half an hour for train to start। there is still half an hour to start, right? हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं स्कूल जाऊं? Okay, do you want that I should go school? डू यू वांट मी टू गो टू स्कूल? Go to school। क्या आप चाहते हैं कि वह शादी में जाए? फिर से एक बार रिपीट कीजिए उसको। डू यू वांट, क्या क्या आप, अच्छा पहले वाला, डू यू वांट डू यू टू मी टू गो वांट टू स्कूल। टू मी नहीं, डू यू वांट मी टू गो टू स्कूल? डू यू वांट मी टू गो टू स्कूल। क्या आप चाहते हैं कि वह शादी में जाए? डू यू वांट ही टू गो टू अटेंड वेडिंग। गलत। डू यू वांट, देखो आई का मी हो गया इधर तो, अच्छा अच्छा, सो ही में हो जाएगा इसका, नहीं आई का क्या हुआ, आई का मी हो गया, सो ही का हाँ हर हो जाएगा, तो हाँ ही का हिम होगा, ही का हिम हो जाएगा। ओके, सो उसका क्या होगा कि मेरा क्या था सेंटेंस में भूल गया। हाँ, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस क्या बोला था सर मैं? क्या आप चाहते हैं कि वह शादी में जाए? हाँ यस, डू यू वांट हिम टू गो टू इन टू अटेंड द मैरिज पार्टी? डू यू वांट हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी? ओके, डू यू वांट हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी, ओके। हाँ मतलब एक क्या आप चाहते हैं उसका हो गया डू यू वांट, फिर आगे मुझसे चाहते हैं तो डू यू वांट मी टू गो टू ऑफिस या मी टू डू दिस वर्क, है ना, मी टू डू, क्या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं ये काम करूं? डू यू वांट मी टू डू दिस वर्क, है ना, ऐसा हो गया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस सेशन फाइंड यू वेल, यू हैव एंजॉय द सेशन, एंड आई थिंक
throughout the session, every member they are translating in their mind what can be the next sentence, what can be the next answer, like that. So thank you for your time and patience. So now I'm going to stop